welcome back again. Yes, I know it's been a long time. I couldn't create any video. काफी time हो गया मैं कुछ video नहीं create कर पाया just because I'd been quite busy in my hectic schedule. काफी busy था, schedule काफी busy था, and that's why I didn't get a chance to create these videos. But I'm back again now. दोबारा से मैं वापस आ गया हूँ, and from now onwards I'll keep creating videos. So I want you people to keep. Keep learning from these videos and आप अपना comment जरूर करें and if you find anything difficult or if you hit some problems just let me know through your comments तो अपने comments जरूर है ना drop करते रहें ताकि जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा और guidance की जरूरत है so I'll keep creating videos helping you to be able to speak good English ताकि आप बहुत अच्छी English बोल पाओ अगर हम पिछले वीडियोस की बात करें so far we've learned 4 lessons. हमने 4 lessons अभी सीखे हैं. I taught you how to use present indefinite. Present indefinite का use हम कैसे करते हैं and what do we have to keep an account while we are framing sentences with present indefinite. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से अगर हमें सेंटेंसेस बनाने हैं तो किस सिचुएशंस में हम उसका यूज करते हैं और कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं. आई टॉट यू दिस. आई आल्सो टॉट यू द यूजेस ऑफ इज एम आर विदाउट वर्ब कि इज एम आर का यूज करते हैं. दीज आर वेरी बेसिक structures actually. Many people know all these things. So tenses are the fundamentals. That's why I thought I should start with tenses. Tenses was the fundamental होते हैं language के लिए. So that's why I thought that I should be starting with this only and ताकि because everybody is willing to learn. So काफी सारे students ऐसे हैं जिनको basic से सीखना होता है. So I thought that I should start from the very basic. कि बहुत basic से start करूं and that's why I started with the very simple structures like is MR with the verb. Mostly people know all these structures, but yes. So we did present indefinite and we learned the use of is MR with the verb. Then we also learned the use of has, have, and has, have, had when it comes to talking about possessions, right? And today we are going to learn past indefinite, right? So आज हम past indefinite का use करने वाले हैं. Past indefinite काफी easy होता है और but sometimes I find that students are likely to make mistakes just because उसमें जो पहला जो रूल आता है इसमें सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं फॉर्मेटिव में बट नेगेटिव में जब बात करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म आती है. सो जनरली आई हैव सीन दैट स्टूडेंट्स मेक the same mistake that वो second form का use negative and interrogative में भी कर लेते हैं. But now we have to know this, right? So हमें ये पता होना चाहिए, we must understand this कि उसमें second form का use ना करके first form का use करते हैं negative or interrogative sentences में. So now without any further delay, let me start the video. So just wait, I'm opening the lesson for you. Now visible. So see, this is day 5. ये 5th वाला day है and we are learning this simple past or you can say past indefinite, right? Past indefinite का हम use करने वाले हैं. So it is quite easy, बहुत easy है. Let me explain you in a very simple fashion. आपको बहुत ही easily मैं आपको इसको समझाने वाला हूँ. So wait for a while. See, this is the tense, right? Let me pick up the pen. So simple past, you already know it, right? It is also known as past indefinite. और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन जो होती है बहुत इजी होती है. whenever a sentence ends with a verb, जब भी कोई सेंटेंस वर्ब पर खत्म होता है. For example, what it is meant by ending with a verb. इसका मतलब क्या होता है कि कोई सेंटेंस वर्ब पर खत्म हो रहा है. See, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि मैं कल वहां पर गया. सो देखो ये गया पर खत्म होगा, दैट इज अ वर्ब, राइट? सो इंग्लिश में गो जो कि वेंट में चेंज हो जाएगा. और अगर हिंदी में बोले तो गया इज जाने का सेकंड फॉर्म जो है तो वर्ब पर खत्म हो रही है, सिंपल सा. सो मैं वहां पर गया, आपने कुछ कहा और मैंने इसको फोन किया और मैंने इस बारे में कुछ नहीं कहा. सो ऑल दिस सेंटेंसेस आर एंडिंग विद द वर्ब. वर्ब पर खत्म हो रहे हैं. सो सी यू हैव टू कीप इट इनटू अकाउंट कि जो भी सेंटेंसेस होंगे ना वर्ब पर खत्म होंगे या फिर सेंटेंस पास में होगा जिसका प्रेजेंट से कोई लेने देना नहीं होगा. सो वो भी किस में आता है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट में आता है. एंड द सिंपलेस्ट वे ऑफ knowing this particular tense तो क्या रहता है
कि या तो जैसे आ पर खत्म हो सकता है, ई पर खत्म हो सकता है, ए पर खत्म होता है, मतलब बाउल साउंड पर खत्म होगा सेंटेंस, राइट, या फिर वर्ब पर खत्म होगा या फिर बाउल साउंड पे। सो विच एवर यू फाइंड इजी, यू कैन गो विद दैट। आप उस केस के जो भी आपको इजी लगता है, यू कैन जस्ट कीप दैट इन योर हेड, राइट, यू कैन जस्ट लर्न इन दैट पर्टिकुलर वे। सो आगे बढ़ते हैं हम। इसका जो रूल होता है अफर्मेटिव का, वो क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट ऑलरेडी कि इसमें जब जिसकी भी बात करते हैं, वेदर इट्स अ पर्सन, प्लेस और व्हाटएवर इट इज, सो उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। देन आपका सेकंड फॉर्म आएगा, देन आएगा ऑब्जेक्ट, राइट। बहुत इजी होता है। Many people might say that, do we have to keep all these rules in a head? That's not going to be quite difficult for you to have these rules in a head, right? It's all about the matter of practice, right? जितना भी आप practice करोगे ना, everything is gonna be quite easy. I also speak with the same rules. मैं भी वही rules से उस rules के साथ मैं बोलता हूँ. Initially, I found that it's gonna be quite challenging, but as I kept putting in efforts, I found that everything is now going to be quite okay, right? So you'll have the same kind of experience. Just try it first. So क्या आएगा नेगेटिव में? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वो आपकी सेकंड फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा। सॉरी, अफर्मेटिव में नेगेटिव में क्या हो जाएगा? इट विल बी, देयर विल बी अ बिट चेंज, कुछ चेंज आएगा। सब्जेक्ट आएगा, डिड नॉट हम यूज करेंगे, और इन शॉर्ट एंड फॉर्म यू कैन से डिडंट, राइट। और वो की सेकंड फॉर्म ना के फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन कम्स इन ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चंस जब हम करते हैं तो डिड पहले आ जाता है, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, वी वन आएगा, राइट, वी टू केवल अफर्मेटिव में आता है, एंड देन आ जाएगा ऑब्जेक्ट। या ना, यू कैन जस्ट गो विद दिस क्वेश्चन मार्क एज वेल, अगर आप लिख रहे हो तो स्पोकन में, यू डोंट हैव टू कीप दिस इन योर हेड। इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव की अगर हम बात करें तो डिड पहले आएगा, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में नॉट आएगा, देन बाकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और इसको हम शॉर्टेंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो हाउ कैन वी स्टार्ट दिस सेंटेंस? सेंटेंस को हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसमें? जस्ट हैव अ लुक एट दिस, राइट। डिड से हम स्टार्ट कर सकते हैं, देन सब्जेक्ट रख देंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन वर्ड में क्या रहेगा? क्वेश्चन वर्ड में हाउ, व्हेन, वेयर, यू नो ये सभी क्वेश्चन वर्ड में आते हैं। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, फिर डेट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वो कि फर्स्ट में आएगी, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, डेट आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, देन फिर फर्स्ट में आ जाएगी, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और इसको हम एक और तरह से कर सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, फिर डिडंट आ जाएगा, राइट, एंड सब्जेक्ट आ जाएगा, ओके, फर्स्ट में आ जाएगा, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इट्स प्रीटी इजी, बहुत इजी होता है। Now let's have a look at the examples. Examples देख लेते हैं because examples are important. कि इनको करना कैसे है ना। You've been given the structures. आपको structures तो अब दे ही दिए हैं, and many people know these structures. ज्यादातर लोगों को पता है, but when it comes to speaking, they find it difficult to go with these structures. जब बोलने की बात आती है तो इस structure से बोल पाना थोड़ा सा difficult लगता है, but trust me, once you start putting all these structures into practice, you'll see some changes in yourself. आपको बहुत बड़े changes दिखाई देंगे, but there is one condition कि आपको practice बहुत करनी है। Keep speaking whenever you feel like speaking. जब भी आपको थोड़ा सा लगे बोलने का, तब बोलते रहो, and find seek some friends who are able to speak in English and who are also willing to learn, जो सीखना चाहते हैं। तो वैसा अगर आप करोगे, then you'll find that everything is gonna work out your way. सेंटेंस क्या है? कल मैं घर लेट पहुंचा। सो किस पर खत्म हो रहा है? पहुंचा पर खत्म हो रहा है। दैट इज अ वर्ब, राइट। सो दिस इज पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है, एंड इट्स अ सिंपल सेंटेंस। आई मीन देयर इज नो नेगेटिव, देयर इज नो क्वेश्चन, तो सिंपल सा क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। सो आई विल स्टार्ट विद, आई नो, विद सब्जेक्ट। सो कौन पहुंचा? मैं। आई आ गया, और देन सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की, तो क्या जगह? रीच्ड। और रीच्ड के बाद में कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं कर सकते हैं, तो कहाँ पर पहुंचा मैं? घर पे। आई रीच्ड होम कब? लेट यस्टरडे। सो आई रीच्ड होम लेट यस्टरडे, या फिर हम यस्टरडे से स्टार्ट भी कर सकते हैं। यस्टरडे आई रीच्ड होम लेट, राइट। नेक्स्ट वन इज, उसने जो किया उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, राइट। सी, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, दिस इज प्रेजेंट, राइट। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंसेस, आई मीन टू टेंसेस का कॉम्बिनेशन है, जिसमें उसने जो किया, राइट। सो दिस इज पास्ट इंडेफिनिट, किया ना, द वर्क इज डन, एंड इट वाज डन इन द पास्ट, पास्ट में हुआ था। उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू,
डिफरेंट टेंसेस, राइट? तो उसने जो किया उसके मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। सिंपल सा बोलूंगा मैं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैं नहीं हूँ तो मैंने आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल लिख दिया है। किस चीज के लिए? फॉर वॉच, मतलब जो, मतलब वॉच ही डिड, सेकंड फॉर्म आ गई, सो व्हाट ही डिड। सो यहाँ पर व्हाट का मतलब क्या नहीं है, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन एक्चुअली, इसका मतलब क्या है, जो है। सो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट ही डिड। नेक्स्ट वन इज, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? हुआ किस पे खत्म हो रहा है? वर्ब पे खत्म हो रहा है, इट मींस इट्स पास्ट इंडेफिनिट, राइट? सो कैसे हुआ, कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद में क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी तो डिड आ जाएगा। हाउ डिड क्या, दिस एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट हुआ, हैपन, क्योंकि ये डिड आ रहा है तो वो की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बिकॉज इट्स एन it's an interrogative sentence, right? So how did this accident happen, right? Next one is, मैं अपने, सॉरी, आपने मेरी हेल्प क्यों नहीं की? तो क्यों नहीं की, इट्स ऑल्सो पास्ट, राइट? किस पर खत्म हो रहा है, वर्ब पर खत्म हो रहा है, हेल्प करने वाला, हेल्प क्यों नहीं की। सो किससे स्टार्ट करेंगे कि क्यों, क्यों मतलब इसमें क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो वाई से स्टार्ट करेंगे, वाई, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वाई डिड यू, मतलब आपने नॉट, किसकी हेल्प नहीं की, हेल्प मी, सो वाई डिड यू नॉट हेल्प मी। नेक्स्ट वन इज, क्या उसने तुम्हारे बताए, क्या उसने तुम्हें बताया कि गलती किसकी थी, राइट? सो इट्स इन पास्ट। सो हम सिंपल से स्टार्ट कहाँ से करेंगे, डिड इट टेल यू, मतलब क्या उसने बताया, डिड इट टेल यू who was at fault, गलती किसकी थी? Did he tell you who was at fault, right? Next one is, तुमको वापस आने में इतनी देर क्यों लगी? It's also past. So इतनी देर क्यों लगी? So why did it, इतनी देर क्यों लगी? Why did it take you so long? Why did it take you so long? क्या करने में? To get back, वापस आने में। Why did it take you so long to get back? Next one is, मुझे जानना है कि तुमने ऐसा क्यों किया, पास्ट ही है पूरा, राइट? लेकिन ये अगर हम इसको देखें, मुझे जानना है या फिर मुझे, मैं जानना चाहता हूँ, बातें की होती हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, दिस इज पास्ट बट दिस इज प्रेजेंट, राइट? सो आई वांट टू नो, क्या जानना चाहता हूँ, आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ why you did that kind of thing. Now see, इसमें why did you हमने इसलिए नहीं बोला because now it's not a question actually. जब इसमें दो sentences जब मिल रहे हैं ना, तो हम इसको फिर affirmative के हिसाब से बनाते हैं, वो वाला रूल चलता है। So why के बाद में क्या, you आया फिर did आया, मतलब second form. This is not the helping verb, right? This is second form, करना तो किया, second form. I want to know why you did that kind of thing. आपने ऐसा क्यों किया? नेक्स्ट इज, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, राइट? सो सिंपल क्वेश्चन वर्ड है ये। सो व्हाई डिड आ गया, व्हाई डिड यू चीट ऑन मी, व्हाई डिड यू चीट ऑन मी, व्हाई डिड यू चीट ऑन मी। नेक्स्ट इज, उसका एक्सेंट हो गया, दिस इज आल्सो पास्ट, उसका एक्सेंट हो गया। किसका एक्सेंट हो गया, उसका हो गया। ही एक्सेंट होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीट विद एन एक्सीडेंट, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, मैट, ही मैट विद एन एक्सीडेंट, सिंपल सा, उसका एक्सेंट हो गया, ही मैट विद एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट इज, लास्ट सैटरडे तुमने क्लास अटेंड क्यों नहीं की, राइट? सो दिस इज पास्ट। सो व्हाई डिडंट यू और व्हाई डिड यू नॉट, दो तरीके से बना सकते हैं। आई एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू in the beginning when I was explaining you all those thing, I mean all those structures, I mean negative में कैसे बनेगा, interrogative में कैसे बनेगा, right? So why didn't you और why did you not, बात एक ही है। Why didn't you attend, अगर मैं बोलूंगा why didn't you तो फिर attend आ जाएगा, या फिर why did you not attend the class, कब, last Saturday। next one is, मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे टाइम नहीं मिला, राइट? दिस इज ऑल्सो पास। सो किसको टाइम नहीं मिला, मुझे, आई डिडंट गेट टाइम, मुझे टाइम नहीं मिला, आई डिडंट गेट टाइम। नेक्स्ट इज, दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया, राइट? सो दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया, इट्स ऑल्सो पास्ट। सो किससे स्टार्ट करेंगे, हु से, हु लेफ्ट the door open, who left the door open। next is, रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई, राइट? सो दिस इज पास्ट। तो हमारी गाड़ी मतलब our car broke down, कहाँ पे, on the way। our car broke down on the sorry our car broke down on the way, या फिर घर वापस आने पर हो गई थी। so our car broke down our way, our way home, on our way home, on our way home कर सकते हैं, on our way home। so a car broke down on the way। next is, मैंने जो उससे बोला
मैंने जो उसे बोला उसने उसका उल्टा किया, मतलब ये भी पास्ट है, पूरे दोनों के दोनों सेंटेंसेस का मिक्स कॉम्बिनेशन है, बट इट्स पास्ट, बोथ सेंटेंसेस आर इन पास्ट। सो उसने उल्टा किया उसका, किसका, जिस जो मैंने बोला उससे। सो ही डिड द ऑपोजिट, डिड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ डू। सो एंड दैट डू मतलब करना, तो उसने किया, ही डिड द ऑपोजिट ऑफ व्हाट, किसका, आई टोल्ड हिम, जो मैंने उससे बोला। नेक्स्ट इज, किसने मेरे पेरेंट्स के मेरे खिलाफ कान भरे भर दिए, मतलब दिस इज पास्ट, मतलब किसी ने। सो समवन, किसने, समवन पॉइजन्ड माय पेरेंट्स ईयर्स, मतलब पेरेंट्स के कान भर दिए, माय पेरेंट्स ईयर्स अगेंस्ट मी, मतलब मेरे खिलाफ मेरे पेरेंट्स के कान भर दिए। समवन पॉइजन्ड माय पेरेंट्स ears against me, right? So you are to keep all these things into account, right? So wait for a while. So you need to understand this tense very well. I mean, first you need to know the identification कि कहाँ पर इसका यूज करने वाले हैं, and simply put you must know the context and situation. Context और situation अगर आपको पता है, then you can easily learn to use these tenses and all, right? So ये आपको बहुत है ना ध्यान में रखना है. So you must keep all these things into account, right? And one more thing I would love to tell you, एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, and I have been repeating the same thing ever since I started teaching you. जब से मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया, मैं एक ही चीज आपसे बोल रहा हूँ, क्या? That once you've been told and once you've been explained all these rules, जब भी आपको ना एक बार जब आपको ये रूल्स पढ़ा दिए जाएं, आपको बता दिए जाएं, then what the next step you have to take is to start practicing with these rules. आपको इन rules के साथ में practice करना है. That's the key to being fluent in English, right? अब यही तो एक key है जिससे आप English में बहुत fluent हो सकते हो. One more thing I would also always love to say, and I always say this to you, that you have to go for regular reading exercises. That's the best thing you can do, because when you read, you kind of come across different vocabularies, आपको बहुत vocabulary आपको पता चलती हैं, come across different structures, आपको structures पता चलते हैं. one more thing you get to know is कि आपने जो याद किया, वो जो पढ़ा हुआ है, उसका यूज करते कैसे हैं. you also get to know about this. So this is going to be very useful, बहुत useful होने वाला है. So this is what I had to share with you, मुझे आपके साथ में शेयर करना था. And I want you to subscribe to this channel so that you can get all those regular updates, and all those you can keep getting notifications, informing you that the video has been dropped, right? ताकि आपको पता चले कि video है वो मैंने drop कर दिया है, and you will then be giving yourself uh, you know a lot of things to learn, right? It will give you a lot of things to learn. So with this, I'm taking a leave, and I hope that you would keep practicing as I've just asked you to practice, right? With this, I'm taking a leave. I'll soon be seeing you in the next video. Till then, take care.